Please be seated. कृपा करके बैठ जाइए। For our meditation, shall we turn to the book of Romans, chapter 14, verse 17. आइए आज के ध्यान के लिए रोमी की पत्री अध्याय 14 वचन 17 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वो आनंद है। For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Praise be to God. परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। It is a familiar verse and you would have heard this verse so many times over and over again. और ये बहुत ही परिचित वचन है जिसको आपने कई बार बारंबार पढ़ के सुना होगा। There is something called eating and drinking. There is something called kingdom of God, and both are poles apart. और कुछ जो है खाना पीना और दूसरा एक विषय है परमेश्वर का राज्य, और ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है। Or if you ask, should we not eat? Should we not drink? तो क्या आप ऐसे पूछोगे क्या हम नहीं खाएंगे, क्या हम नहीं पीना है? Without eating and drinking, it is true that we cannot survive. हाँ, बिना खाए पिए हम जी नहीं सकते, ये सत्य है। But what has happened is, even so-called Pentecostalists have given themselves to eat, drink, and they think less of the kingdom of God. किंतु अब ऐसे होने लगा है कि पेंटिकोस के अनुभव में रहने वाले खाते पीते हैं और परमेश्वर के राज्य के संबंध में ज्यादा ध्यान नहीं देते। So then, wherever we see in the Bible, in the Old Testament as well as in the New Testament, जहां कहीं भी धर्मशास्त्र में देखो, वो पुरातन नियम हो या नया नियम, when they had indulged themselves with surfeiting, they've lost the blessings of God. जब भी उन्होंने खाने पीने और खुमारपन की बातों में ज्यादा समय दिया या ज्यादा विषय को दिया, उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। Yes, we should eat to live, but we should not live to eat. हम लोग जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। Shall we examine ourselves whether we really desire that kingdom of God and its righteousness? क्या हम सच में परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता को चाहते हैं? अपने आप को परख करके देखो। Yes, it is true that you should eat according to your age, according to the kind of work that you do. हाँ, ये सत्य है कि आपके उम्र के हिसाब से आप जो काम करते हैं उस हिसाब से आप खाना चाहिए। But we should be very, very careful. By doing that, we should not lose the kingdom of God. लेकिन इस बात से हम बहुत ही सावधान रहे कि वो काम या खाते पीते समय परमेश्वर के राज्य को किसी रीति से ना खोए। I like to tell stories. मुझे कहानी कहना पसंद है। There is a legend, old legend about a swan and the crane. और बहुत ही एक पुरानी एक इस प्रकार लोक कथा है जहां पर हंस के बारे में और एक बगुला के बारे में कहानी है। A crane was wading in the slushy waters looking for snails. और एक जो बगुला था वो एक दलदल वाले पानी में वो स्नेल्स की शिकार में वहां पर दिखाई दे रहा था। Snail, what is it? Praise be to God. Wading in that slushy water for snails. और वो स्नेल्स के लिए वो उस दलदल वाले कीचड़ वाली जगह में खोज रहा था। As she was just, then she looked at a beautiful bird there. और वहां पर देखा एक बहुत ही सुंदर एक पक्षी दिखाई दे रहा है। And the swan was also there. वहां पर एक हंस भी है। It was so beautiful. और बहुत ही सुंदर है। And he asked, "Where are you from?" और उसने पूछा कि आप कहां से हो? I am from heaven. उसने कहा कि मैं स्वर्ग से हूं। What is there in heaven?
स्वर्ग में क्या है? Then it started to explain about the glories of heaven. उस स्वर्ग की महिमा को वो वहां पर विवरण करने लगा। There are angels singing solemn songs. और वहां पर स्वर्गदूत है जो गीतों के ऊपर गीत गाए जा रहे हैं। Streets are paved with gold. और वहां पर रास्ते जो सोने के बने हैं, सड़कें, The whole place is full of light. पूरा स्थान जो है वो ज्योति से भरा है। And on either sides of the river you can see beautiful trees, fruit-bearing trees. और नदी के दोनों तरफ हम लोग फलदायक वृक्षों को देख सकते हैं। Oh, it is a wonderful place where there is no sorrow, no pain, no sickness. ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही आश्चर्यमय स्थान है, जहाँ कोई दर्द नहीं, जहाँ कोई रोना नहीं, वहां पर कोई शोक नहीं। Then this crane asked, "Is there any snail there?" तो उस समय में उस बगुला ने पूछा कि क्या वहां पर कोई स्नेल है? Oh, well, not. We don't have snail there. नहीं, उसने कहा कि नहीं, वहां हमने तो कोई स्नेल को नहीं देखा। You can't have snail there. वहां पर स्नेल नहीं है। But he said, "You can have that heaven for yourself. I want snail." उस समय में इस बगुला ने हंस से इस प्रकार कहा, तेरे लिए स्वर्ग मुबारक हो, मुझको तो यहाँ पर स्नेल चाहिए। So it again started to wade, looking for snails here and there. और उसके बाद वो दोबारा वहां पर उस पानी में उस स्नेल्स को ढूंढने लगा। This is what man is about, you must understand. और ऐसे ही मनुष्य है, इस बात को हम लोग समझना चाहिए। What shall I eat? What shall I drink? And wherewithal shall I be clothed with? और मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, इसी चिंता और बोझ में मनुष्य रहता है। The word of God says, the heathen seek after these things. वचन इस प्रकार कहता है, अन्य जाति लोग इस प्रकार की बातों की खोज में रहते हैं। On the other hand, it is mentioned, seek ye the kingdom of God and its righteousness, and all these things will be added unto you. दूसरी तरफ ये लिखा हुआ है कि उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दिया जाएगा। I don't know why the Lord has put this word in my heart to as a message here. मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर ये संदेश देने के लिए परमेश्वर ने मेरे दिल में क्यों डाला। So then some of us may be over-indulging in such things. शायद हो सकते कि कुछ लोग इस बातों में ज्यादा ही डूबे हुए हैं। Let not your hearts be overcharged with drunkenness and surfeiting. This is what Jesus has mentioned. और पवित्र मसीह ने इस बात को ही कहा है कि तुम लोग खुमारपन में और खाने पीने के विषय में अधिक तुम लोग डूब के नहीं जाना चाहिए। No, what does man say? What does man say? और मनुष्य क्या कहता है? Today we'll eat and drink. Tomorrow we are going to आज हम खाएंगे पिएंगे क्योंकि कल तो मरना है। That is what we read from the book of Isaiah chapter 22 verse 13. और यही बात यशायाह की किताब 22वें अध्याय के 13 वचन में हम देखते हैं। Read that verse. पढ़ेंगे। Isaiah 22 verse 13. And behold, joy and gladness, slaying oxen and killing sheep, eating flesh and drinking wine. Let us eat and drink, for tomorrow we shall die. परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है, गाय बैल का घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है, मांस खाया और दाखमधु पिया जा रहा है, और कहते हैं आओ खाए पिए क्योंकि कल तो हमें मरना है। You look at the number of hotels there on the way. आप रास्ते में देखो कितने सारे होटल्स हैं। Beautiful advertisement about them. और उसके बारे में बहुत ही सुंदर सुंदर विज्ञापन दिखाई देता है। So then you can, that is vegetarian, non-vegetarian, so many things. अब मांसाहारी और आप शाकाहारी, ऐसे कई प्रकार के होटलों को देख सकते हो। If you go through the streets of Chennai where at present I am serving. अगर आप चेन्नई में जाके देखोगे वहाँ की सड़कों में जहाँ पर मैं इन दिनों में सेवा कर रहा हूँ, Everywhere biryani, that biryani, this biryani, that biryani. हर जगह में हर कोने में बिरयानी ये वो बिरयानी दिखाई देता है। Please, after eating all these things, where will you go? That they don't know. ये सारी बिरयानियों को खाने के बाद कहाँ जाएंगे ये इस बात से अनजान है। Even here also there are so many fast food shops. यहाँ पर भी देखो कितने सारे फास्ट फूड दुकान
मुसलमानों को देख सकते हैं, Everywhere eating and everywhere drinking, everywhere eating and drinking. हर जगह हर कोई खाता पीता इसी चिंता में रहता है। But at the same time, when you go through the Word of God, किंतु उसी समय में जब आप परमेश्वर के वचन में जाओगे, there are at least 10 groups who gave themselves for eating and drinking, lost the blessings of God. तकरीबन 10 ऐसे दलों को या झुंडों को आप देखोगे जिसने खाने पीने की बातों में ज्यादा ध्यान दिया और परमेश्वर की आशीषों को खो दिया। Nothing wrong in eating and drinking, but not at the expense of losing the kingdom of God. खाने पीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस कीमत में हम खाने पीने के विषय में नहीं जाना कि परमेश्वर के राज्य को ही खो दें। When I was serving the Lord in a particular place down south, और मैं जब दक्षिण भारत में जब एक जगह सेवा कर रहा था, so then I had to baptize a person. मुझे वहां पर एक व्यक्ति को बपतिस्मा देने को है। What was his testimony? उसकी गवाही क्या है? I have eaten an omelette made out of 25 eggs. और मैंने at a time. मैंने एक बार एक ऐसे आमलेट को खाया जो 25 अंडों से बना था। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। Oh, there are such people also. ऐसे भी लोग हैं। One or two, that's not wrong. एक या दो अंडे का आमलेट खाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। According to the kind of job that you should eat and drink. आपके काम करने के तरीके, आप जो काम करते हो उसके अनुसार आप खा सकते हो। And I was mentioning about this testimony in another place. और मैं ये गवाही को दूसरे जगह में जब बता रहा था, A person said, I have eaten 50 eggs at a time. और उसने इस प्रकार कहा कि मैंने तो 50 अंडा एक ही बार में खाया है। He was a weightlifter. He was a weightlifter. वो एक कसरत करने वाला वेट लिफ्टर था। So they were given proper, and he has represented India in Russia also. और वो हमारे भारत का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि होकर के रूस तक भी गया है। So therefore he said the exercise that they give us, we don't know where it all goes. और वो इस रीति से कसरत करता है, वो कहता है कि ये सारा जो मैं खाता हूँ कहाँ जाता हूँ मैं भी नहीं समझता। 5 liter milk. 5 लीटर दूध पीता है। And he would say we don't drink fruit juice in cups, that apple juice and orange juice. We have only in mugs. और हम लोग जब जूस को पीते हैं या एप्पल जूस या कोई जूस होता ग्लास में पीते, लेकिन वो तो पूरा मग का मग पी लेता है। Not in cups but in mugs. वो कप्स में नहीं मग में पीता है। Liters और लीटर पीता है। But at the same time they are also children of God. They are also children of God. वे भी परमेश्वर के संतान ही हैं। But at the same time you must understand, now God has changed them. Now they are altogether changed. लेकिन अभी परमेश्वर उनको बदल दिया, वे संपूर्ण रीति से बदल गए हैं। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। From the book of Genesis till the book of 1 Corinthians we see people were eating and drinking and they lost the blessings of God. अगर हम लोग उत्पत्ति की किताब से आरंभ करते हुए अगर हम लोग पहले कुरिन्थी की किताब तक पढ़ करके देखेंगे, कितने ही लोग ऐसे हैं जो खाते पीते रहने के कारण अपने आशीष को खो बैठे। We see the rich man, he was only eating and drinking and making merry. There was no fasting at all. और हम देखते हैं उस धनवान व्यक्ति के बारे में जो खाता था पीता था और वो सुख विलास से जीता था, लेकिन वो कभी भी उपवास नहीं लिया। He had other problems also, other iniquities also. He ended up in hellfire. We all know that story in the book of Luke chapter 16. लूक रचित सुसमाचार के 16 अध्याय में और भी अनेक प्रकार के अधर्म उसके जीवन में था और वो अंत में जाकर के नरक में पहुंचा। यह कहानी हम सब जानते हैं। Our first mother, great grandma Eve. और हमारी पहली माँ जो हव्वा थी, and then she lost the blessing by eating and drinking. वो भी खाने और पीने के कारण ही आशीष को खो बैठी। We see so many people in the and there are some of them are very spiritual also. और ऐसे बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं और उसमें से कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो बहुत ही स्पिरिचुअल आत्मिक होकर के दिखाई दिए। So then some of them were spiritual. उसमें से कुछ आत्मिक थे। Say for example Job's children. उदाहरण के रूप में रीति में अय्यूब या अय्यूब के बच्चों को ले लो। They were all grown up. They had their own homes. You must understand. और उन लोग सब बड़े हो चुके थे और उनका अपना अपना अलग घर था, ऐसे दिखाई पड़ता है। They were not babies. उन लोग छोटे छोटे बच्चे नहीं है। But at the same time they had their own families. They probably married also. और उन लोग का अपना एक घर है, अपना परिवार है, उन लोग विवाह के साथ अपने परिवार के साथ रहते हैं। Job sacrificed for them, but we don't see them praying at all. और हम देखते हैं कि अय्यूब अपने
अपने बच्चों के लिए वहां पर बलि चढ़ा रहा है, लेकिन उन बच्चे लोगों को प्रार्थना करते हुए कोई भी बात हम नहीं देखते हैं। So perhaps my children would have cursed God in their mind, therefore he would offer sacrifice for them. और अय्यूब ने अपने बच्चों के लिए इसके लिए बलि चढ़ाया कि हो सकता है कि मेरे बच्चों ने परमेश्वर के विरोध में अभिशाप की बातें बोला होगा, बोलकर के उसने बलि चढ़ाया। Word of God has not recorded whether they have prayed or whether they have offered sacrifice. परमेश्वर के बच्चों में इस बात को दर्ज नहीं किया गया है कि अय्यूब के बच्चे भी इस रीति से बलि को चढ़ाए या प्रार्थना किए। So these are the last days. Let us be careful about eating and drinking also. हम लोग अंतिम दिनों में आ पहुंचे, इसके लिए हमारे खाने पीने के विषय में हम सावधान रहें। So kingdom of God is not meat and drink. परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। So what it is? फिर वो क्या है? Righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. धार्मिकता, मिलाप और परमेश्वर की आत्मा में आनंद है। I would like to speak few things about righteousness now. मैं धार्मिकता के संबंध में कुछ बातें आपको बांटना चाहता हूँ। What is righteousness? धार्मिकता क्या है? So then, there is something called self-righteousness. कुछ है जिसको हम लोग स्वयं धार्मिकता बोलते हैं। There is something called righteousness of the law. और कुछ है जो व्यवस्था के अनुसार की धार्मिकता। There is something called righteousness which is by grace. और कुछ धार्मिकता है जो अनुग्रह से हमें मिलता है। So what is that righteousness that you are accepting? You have accepted. और कौन से धार्मिकता को आपने ग्रहण किया है? Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। There is something called self-righteousness. सबसे पहले स्वयं धार्मिकता। When we turn to the book of Isaiah chapter 64 verse 6. जब आप 64 यशायाह की किताब के 6 वचन को पढ़ोगे, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य से हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़े के समान हैं। हम सबके सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्मों के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। But we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags, and we do all fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। You would have fed the poor. आप गरीबों को खिला सकते हो। You would have given money to others. आप दूसरों को पैसे भी देते हो। All these things may be right. ये सब कुछ अच्छा ही होगा। There is something called morality in this world. और इस संसार में कुछ नैतिकता भी है। I am faithful in everything. मैं सारी बातों में विश्वास योग्य I हूँ। am faithful in giving tithes. मैं दशमांश देने में विश्वास योग्य हूँ। I am faithful in helping the poor. गरीबों को मदद करने में भी मैं विश्वास योग्य हूँ। I pray and then live a life which is acceptable in the sight of the society. मैं प्रार्थना करता हूँ, सामाजिक रीति से ग्रहणीय के जीवन बिताता हूँ। But at the same time, that is not sufficient. किंतु उसी समय में ऐसा जीवन काफी नहीं है। There are so many others also who do these things. ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये सब करते हैं। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। Those things will not take us to the kingdom of ये God. सारे काम क्रियाएं परमेश्वर के राज्य में हमें नहीं ले जाएगा। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। Before I continue, I'll just mention few things about the kingdom of God. मैं इससे पहले कि इस विषय को आगे कहूँ, परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। Kingdom of God is not only in heaven. Kingdom of God is in this world. You must परमेश्वर understand. का राज्य केवल स्वर्ग में ही नहीं, इसी पृथ्वी पर भी है। Unless you live a proper life in this world, you cannot end up there. एक सही जीवन इस संसार में ना जीने से स्वर्ग राज्य में जो नित्यता में है आप प्रवेश ना करोगे। First of all, as we see in our Sunday school syllabus, जैसे कि हम लोग संडे स्कूल के सिलेबस में देखते हैं, Kingdom of God is Jesus Himself. सबसे पहले परमेश्वर का राज्य कहने से स्वयं यीशु मसीह है। I don't have time to pick up all those verses. मैं सारे वचनों को भी दिखाने नहीं जा रहा हूँ। Kingdom of God is Jesus Himself. प्रभु यीशु मसीह आप परमेश्वर का राज्य है। So then, because He said, if I by the finger of God have cast out demons, then the kingdom of God has come to you. और इसी के लिए यीशु मसीह ने कहा कि यदि मैं परमेश्वर की आत्मा के माध्यम से इस भूतों को मैं बाहर निकालता हूँ तो देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, मध्य में है। Second, Holy Spirit is the kingdom of God. दूसरा, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर का राज्य है। Many of you here will not see death. Still you see the kingdom of God coming with all power, He says. और यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि तुम में से ऐसे बहुत सारे यहाँ हैं, जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य के साथ उतरते हुए ना देखोगे
तुम मरोगी नहीं, ऐसा यीशु ने कहा। So Holy Spirit is compared to a kingdom of God. यहाँ पर पवित्र आत्मा भी परमेश्वर के राज्य के साथ तुलना किया गया। That is, Church of God is compared to the kingdom of God. परमेश्वर की कलीसिया भी परमेश्वर के राज्य के साथ तुलना किया गया। As we read from the book of Hebrews chapter 12 verse 22 onwards, जब हम लोग इब्रानी की पत्री 12वां अध्याय 22 वचन से नीचे पढ़ते हैं, you have already come inside the Zion and New Jerusalem, kingdom of God. हम लोग पहले से ही सियोन यरूशलेम में आकर के पहुंच गए, जो कि परमेश्वर का राज्य है। Then apart from that, in heaven there are 4 places. They are all considered as kingdom of God. और स्वर्ग के संबंध में कहा जाए तो स्वर्ग में भी 4 अलग अलग स्थान हम देखते हैं। सबको मिलाने से वो भी परमेश्वर का राज्य है। New earth, new heaven, new Jerusalem and also Zion. नई पृथ्वी, नया आकाश, नया यरूशलेम और सियोन। Why have you come to the presence of God tonight? आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में क्यों आए हो? You have not come to go to new earth or new heaven. हम एक नया पृथ्वी, नया आकाश में जाने के लिए नहीं आए हैं। Nothing less than New Jerusalem and Zion. हम लोग को नए यरूशलेम और सियोन से कम कुछ नहीं चाहिए। Heaven is a wonderful place full of glory and grace we see. और हम जिस बात को देखते हैं कि स्वर्ग बहुत ही मनोहर स्थान है, उसमें अनुग्रह और आशीष से भरा हुआ है। So what is the kingdom of God? और परमेश्वर का राज्य क्या है? To be seen there, what are you supposed to do? और आप जब वहां जाओगे तो क्या करोगे? As I mentioned earlier, if we are filled with the righteousness, self-righteousness, we will never be seen there. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम स्वयं धार्मिकता में परिपूर्ण होंगे तो कभी भी परमेश्वर के राज्य में ना जाएंगे। By our rituals and by our sacrifices, we cannot become righteous. हमारे रीति रिवाज के द्वारा, बलिदानों के द्वारा हम धर्मी नहीं बन सकते। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। We are all as filthy rags in the presence of God. ये सारी बातें ईश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान हैं। Then there is something called righteousness after the law. और कुछ ऐसा भी है जिसको व्यवस्था के अनुसार की धार्मिकता कहा जाता है। When we turn to the book of Philippians chapter 3 verse 9, जब फिलिप्पी की पत्री 3 अध्याय के 9 वचन को पढ़ते हैं, और उसमें पाया जाऊं न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। And be found in him, not having mine own righteousness which is of the law, but that which is through the faith praise be of to God. परमेश्वर की स्तुति हो। There is something called righteousness of the law. यहाँ पर व्यवस्था के द्वारा मिलने वाली धार्मिकता। So then there is a law given by Moses, all those 10 commandments. I am faithful in that. परमेश्वर ने मूसा के द्वारा एक व्यवस्था दिया, 10 आज्ञाओं के प्रति मैं विश्वास योग्य हूँ। This is what the Pharisee doing. और यही फरीसी लोग किया करते थे। So then I pray twice a day. I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ। I fast twice a day. मैं twice a week. मैं सप्ताह में 2 बार उपवास लेता हूँ। I am not unfaithful. मैं अविश्वास योग्य नहीं। I am faithful in everything. मैं सारी बातों में विश्वास योग्य हूँ। I am faithful towards my spouse. मेरे पत्नी के प्रति या मेरे जोड़ी के प्रति मैं विश्वास योग्य हूँ। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। So therefore they say I am okay. So then nothing will happen to me because I will definitely be seen in the kingdom of God. और इस रीति से मैं सही हूँ और इसलिए निश्चय मैं परमेश्वर के राज्य में जा पहुंचूंगा करके वे कहते हैं। I am regular for the as far as Pentecostalists are concerned. मैं पेंटिकॉस्टल होने के कारण मैं निरंतर सभा में जाता हूँ। As far as Pentecostalists are concerned. और पेंटिकॉस्टल लोगों के संबंध में बोलने से मैं निरंतर प्रार्थना में जाता हूँ। I am regular for all meetings. मैं सारे सभाओं में निरंतर जाता रहता हूँ। So then I am faithful in morning praising. मैं सुबह के स्तुति प्रार्थना के संबंध में भी विश्वास योग्य हूँ। I am regular in my tithes. और मैं अपने दशांश को निरंतर सही समय में देता हूँ। I do more than what I am supposed to do. और जो कुछ मुझे करना है उससे बढ़ चढ़ करके मैं करता हूँ। The word of God says this, I am doing this. और वचन के अनुसार ये सब कुछ मैं करता हूँ। When that is not sufficient, you must understand. किंतु आप समझ ले ये भी काफी नहीं है। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। In the West there was a lady. और पश्चिमी देश में एक महिला थी। Not in our church, some other. वो हमारे कलीसिया से नहीं, एक दूसरी सभा से है। She wanted to live a clean life. वो एक बहुत ही शुद्ध स्पष्ट जीवन जीना चाहती थी। She would try to examine herself, cleanse herself, cleanse herself, cleanse herself. वो अपने आप को परखती, अपने आप को शुद्ध करती, अपने आप को हमेशा शुद्ध रखती। What she found out was the more she
examined herself, cleansed herself, more sins started to enter into और her. उसने इस बात को देखा कि जितना वो अपने आप को परख के शुद्ध करने की कोशिश करती, उतना अधिक पाप उसके जीवन में आ जाता। So then she was fed up with that. वो इसलिए अपने जीवन से परेशान हो चुकी थी। How long will I confess over and over again? कब तक मैं बार बार अपने पापों को स्वीकार करती रहूंगी? Some of us do the same thing only. कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। Every sanctification meeting we confess our sins. हर एक शुद्धिकरण सभा में आते हैं और पाप स्वीकार करते रहते हैं। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। And then we say, so after so many things we get, what is the use of confessing? और उसके बाद कई दिनों के पश्चात मन में ये विचार आता है कि इतना स्वीकार करके फायदा क्या है? So then by that you will not become righteous. और उसके द्वारा हम धर्मी नहीं बनते। You know afterwards what happened to that lady? और उसके बाद पता है उस महिला के साथ क्या हुआ? She stopped going to the church. और वो कलीसिया में जाना ही छोड़ दी। Almost 10 years she did not go to any worship, any place of worship. कोई भी प्रार्थना स्थान में, आराधनालय में वो 10 साल तक नहीं गई। Then finally she got a cassette. एक दिन अचानक उसको एक कैसेट मिलता है। In that message it was mentioned about the righteousness of God. और उस कैसेट में परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में उसने सुना। By you cannot become righteous. आपके अपने क्रिया कर्म के द्वारा कभी भी धर्मी नहीं बन सकते। By our righteousness we will never. Righteousness is not by deeds, it is by faith. हमारी धार्मिकता हमारे क्रिया से नहीं, हमारे विश्वास से है। Some of you would have read about Martin Luther. मार्टिन लूथर के बारे में आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। He was the father of Reformation. और वो एक आंदोलन या एक संजीवन का पिता करके माना जाता है। Reformation, सुधार का एक पिता करके माना जाता है। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। He was a bishop. वो एक बिशप। He was a monk. So then he was supposed to go on his knees to meet Pope, it seems. और पोप से मुलाकात करने के लिए घुटनों में होकर के वो जाता था। But before that, he secretly had gone through the Word of God in Latin. It was only in Latin and Hebrew and other languages. और उससे पहले कि वो ये काम करे, परमेश्वर के वचन को लैटिन और हिब्रू भाषा में किस रीति से उसने वो पढ़ा है। Those days they were not permitted to read the Bible at all. उन दिनों में धर्मशास्त्र को आम लोगों को पढ़ने के लिए अनुमति नहीं था। But as he went through that, he thought something is terribly wrong with the system. और जब वो इस रास्ते से जा रहा था तो उसके अंदर इस प्रकार एक चिंता आया कि ये रीति, ये प्रणाली सही नहीं है। To meet Pope, he was supposed to go on his knees to meet him, it seems. पोप से मुलाकात करने के लिए घुटनों में होकर के सीढ़ियों को चढ़ के जाना पड़ता है। They said the steps on which he has to go, it was in Jerusalem. It was the same steps which Jesus went to stand before Pilate, and mysteriously it got shifted from there to Vatican. और वो लोग इस प्रकार कहते हैं कि यीशु मसीह पिलातुस से मुलाकात करने के लिए जिस सारे सीढ़ियों में चढ़ करके गया, वही सीढ़ी है जो कि यरूशलेम से बड़े अद्भुत और आश्चर्य रीति से उठा करके उसको वेटिकन में ले गए। As he was going on his knees, और जैसे जैसे वो सीढ़ी में घुटने में होकर के बढ़ने लगा, he heard a voice. उसने एक आवाज सुना, The just shall live by faith. मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा। It's not by deeds. It's not by any of the things that we do. It is by faith. ये हम करने वाले कोई काम और क्रिया से नहीं, ये केवल विश्वास से। Then he came to a conclusion. I've been wasting all my times these years. और उसके बाद वो इस नतीजे में पहुंचता है कि इतने सालों तक, दिनों तक मेरे जीवन को मैं व्यर्थ कर रहा था। He came down and wrote 95 things against the Catholic Church and walked out. और वो उस सीढ़ी से नीचे उतरता है, कैथोलिक चर्च के विरोध में तकरीबन 95 विषय को लिख करके वो वहां से निकल गया। Jesus has become righteousness for us. यीशु हमारे लिए धर्मी बना है। When we turn to the book of 1 Corinthians chapter 1 verse 30, जब हम लोग पहला कुरिन्ती पहले अध्याय के उस 30 वचन को पढ़ते हैं, we cannot be righteous at all. आप कोई भी धर्मी नहीं बन सकते। By our deeds or efforts, of our fasting, or any other things that we do, we don't become righteous. हमारे कामों के द्वारा, क्रिया के द्वारा, उपवास के द्वारा हम कभी भी धर्मी नहीं बन सकते। Yes, it is true that we'll have to confess our sins. ये तो सत्य है कि हमें हमारा पाप स्वीकार करना है। Yes, we have to go and reconcile with others. That is true. हमें दूसरों के साथ मेल मिलाप करना है, ये भी सत्य है। But at the same time, that alone will not be sufficient. लेकिन उसी समय में ये हमारे लिए काफी नहीं है। We have become righteous in Christ, you must understand. हम इस बात को समझने की हमें मसीह में धर्मी बनना है। Read that verse, 1 Corinthians chapter 3 verse 30, chapter 1 verse 30. पढ़ेंगे पहला कुरिन्ती उसके पहले अध्याय का 30वां वचन।
परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. He has become our righteousness, you must understand. हम लोग इस बात को समझ लें, वो हमारे लिए धर्म बना है। When we understand this truth, I am in him and I become righteous. और जब हम लोग इस बात को, इस सच्चाई को समझ लेंगे कि मैं उसमें हूँ, उस समय में हम उसकी धार्मिकता को पाएंगे। Not outside, in him. हम बाहर नहीं, उसमें पाया जाना है। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। From that you should go from righteousness to righteousness. और वहां से धार्मिकता से और भी अधिक धार्मिकता की ओर हम बढ़ने लगते हैं। Later that lady came back to a particular, she attended another church and when she understood this truth, her life altogether changed. और उसके बाद वो महिला जब इस सच्चाई को जाना, वापस आई और उसका जीवन संपूर्ण रीति से बदल गया। When she understood, when she sought after the kingdom of God and its righteousness, you know what happened? और जब उसने उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करने लगा, तब पता है क्या हुआ? It's not a cooked up story, it is a true story. और ये एक कथा कहानी नहीं, एक सत्य घटना है। So then, when she became righteous in God, जब वो मसीह में और या परमेश्वर में जब वो धर्मी बन गई, God blessed her spiritually, physically also. परमेश्वर उसको शारीरिक रीति से भी आशीष करने लगा। For 10 long years, she was affected by a terminal illness. और 10 लंबे समय से एक बहुत बड़ी बीमारी से वो पीड़ित थी। She was perfectly healed. उसको संपूर्ण चंगाई मिल गया। Probably she would have tried all medicines. उसने बहुत सारे औषधि का इस्तेमाल किया था। She was perfectly healed. लेकिन अभी वो संपूर्ण उसको चंगाई मिल गया। One more thing also happened, whether you believe it or not. आप विश्वास करो या ना करो, और भी एक बहुत बड़ी बात हुआ। Her husband was a baldy. और उसका जो पति था वो टकला था, गंजा था। Then when they understood about this truth, hair started to grow. और जब ये लोग इस सत्य को जानने लगे, उसके सिर के बाल उगने लगे। So then we should not be bothered about such things, but this is what God was able to do for her. और हम लोग अगर इस प्रकार की अवस्था में हैं, हम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ऐसे काम उसके लिए किया है। Seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all these things will be added unto you. उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी बातें आपको मिलेगा। Jesus is the measure of our righteousness, you must understand. हम लोग इस बात को समझ लें कि प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता का वो नाप है। Lord, I want your righteousness. हे परमेश्वर, मुझे तेरी धार्मिकता चाहिए। This righteousness begins at water baptism. और ये धार्मिकता पानी के बपतिस्मा में हमें मिलता है। John the Baptist did not want to baptize Jesus. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को बपतिस्मा देना नहीं चाहता था। But at the same time, he said, suffer me, that we may fulfill all the righteousness of God. लेकिन उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी रीति से हमें सारी धार्मिकता को पूरा करना है। You may be a believer, you may be a believer's child. Have you obeyed the Lord in the waters of baptism? आप एक विश्वासी होंगे या विश्वासी के बच्चे होंगे, क्या आपने पानी का बपतिस्मा लिया है? You got one more opportunity tomorrow. एक और मौका कल आपके लिए है। Unless you are born of water and of spirit, you will not enter into the kingdom of God. जब तक आप जल और आत्मा से ना जन्मोगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। Today, so if there is anyone who is yet to receive the Holy Spirit, obey the Lord in the waters of baptism, do it. और अगर यहाँ पर अब भी कोई है जो पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है, आप शीघ्र उस पानी के बपतिस्मा को ले लें। Doors of the gospel are fast closing down, as we all know. Doors of the gospel are closing. सुसमाचार का द्वार बहुत ही शीघ्र बंद होने जा रहा है, इस बात को हम भली भांति जानते हैं। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। A child of God went to heaven. एक परमेश्वर का बच्चा स्वर्ग गया। Doors were already closed, almost closed. It seems. वहां पर उसने देखा कि स्वर्ग का द्वार लगभग बंद ही हो चुका है। There was only a small slit as wide as the hair he was able to see. और उसने वहां पर एक छोटी सी दरार बाल के समान उसने वहां पर उसको केवल देख पाया। And he was able to hear the voice from there. Door will be closed very soon. Come inside, come inside, come inside. और उसने वहां पर एक आवाज सुना कि बहुत ही शीघ्र द्वार बंद हो जाएगा, जल्दी अंदर आ, जल्दी भीतर आ। Grace, the dispensing of grace is coming to an end. अनुग्रह का ये युग खत्म होने जा रहा है। We heard about that on the first day message. We heard about that on the second day message. पहले दिन के संध्याकालीन सभा में, दूसरे दिन के संध्याकालीन संदेश में हमने इस बात को सुना। Now
is the day of salvation. Now is the acceptable time. अभी ही सुप्रसन्नता का दिन है, यही उद्धार का समय है। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। Today I would like to mention 4 things about this righteousness. इस धार्मिकता के बारे में 4 बातें मैं आपको बताना It चाहूंगा। has got many explanations. उसके कई प्रकार का विवरणी है। What is righteousness? धार्मिकता क्या है? One explanation is that which is right in the sight of God. एक विवरणी इस प्रकार है, धार्मिकता कहने से वो चीज जो ईश्वर की दृष्टि में सही है। It may be right in my sight, it may be right in your sight. हो सकता है कि आपके दृष्टिकोण में, मेरे दृष्टिकोण में वो सही हो, But at the same time, it may not be right in the sight of God. किंतु वो चीज परमेश्वर की दृष्टि में शायद सही ना होगा। Say for example, उदाहरण के तौर से, should you pay GST? क्या आप जीएसटी को देते हो? Should you pay or not? क्या आप उसको जीएसटी को देना है या नहीं देना है? Oh, they are huge. It's a huge amount. They are swindling us. और ये जीएसटी को देने के लिए जाएंगे तो बहुत ज्यादा पैसा रकम देते हैं, लोग हमको पूरा चूस लेते हैं। Do as Jesus mentioned. क्या यीशु मसीह ने, जो यीशु मसीह ने कहा वो करो। Render unto Caesar that which belongs to Caesar. Render unto God that which belongs to God. जो कैसर का है वो कैसर को, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। So then, you pay when you buy a fridge, freezer, or anything. Do you pay a GST for that? जब आप फ्रिज लेते हो, फ्रीजर लेते हो या कोई भी इस प्रकार की चीजों को लेते हो, क्या जीएसटी भी देते हो? I don't need a proper bill. मुझे एक बिल की जरूरत नहीं है। Just give me a small copy, that's enough. मुझे एक छोटा सा पर्ची में लिख दो, वही काफी है। Just give me a guarantee card, that should be something. मुझे केवल वारंटी कार्ड दे दो, वही काफी है। No, you will not fulfill the righteousness of God. You will not enter into the kingdom of God. ऐसे करोगे तो आप परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा नहीं कर रहे हो, परमेश्वर के राज में भी प्रवेश ना करोगे। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। There was a pastor who shifted his base to another place where he was pastoring a church. और एक पास्टर जी थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान में उसको स्थानांतरित किया गया। From his place he was going to the marketplace. और वो उस स्थान से वो बाजार जा रहा था। So then the driver gave him 25 cents more. और उसका जो ड्राइवर था उसको 25 रुपए जो है उसको ज्यादा दिया। 20 American cents, that quarter they said. 25 cents more. और अमेरिका के उस 25 को जो सेंस जो उसको ज्यादा दिया। You know, he just counted and said that he had probably he had given me by mistake 25 cents. और उसने जब उसको लिया तो उसने इस बात को सोचा कि शायद गलती से उसने ये ज्यादा दे दिया है। So then afterwards he thought. और उसके बाद उसने सोचा, ट्रांसपोर्ट कंपनी दे आर ऑलवेज चार्जिंग अस मोर. ये ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है हमेशा ज्यादा ही पैसा ऐंठता है. दिस इज ओके फॉर मी. तो ये जो ज्यादा मुझे 25 मिल गया है ये ठीक ही है. Anyway, they are cheating us, cheating the public. They are charging us more. और ये जो है लोग को पहले से ठगते हैं, ज्यादा लेते हैं. After all, it's only 25 cents. The company will not even know about और ये तो केवल 25 सेंट ही है और ये कंपनी भी नहीं जान पाएगा कि कितना दिया है. Then afterwards, as he was alighting, Spirit of God asked him to give that money back. लेकिन उसके बाद परमेश्वर की आत्मा ने उससे बातें की और कहा कि वो पैसा तो वापस देना चाहिए. What was his thought? उसका चिंता क्या है? It is right. It's okay. If I by mistake if they have given more, I did not ask for it. It's okay. और उसने it is for the Lord's work. उसने अपने मन ही मन सोचा कि मैंने तो ये पैसा नहीं मांगा था, उसी ने मुझे दिया है. अगर उसने दिया तो ये ठीक ही है, ये शायद परमेश्वर की ओर से है. इस रीति से वो हिसाब करने लगा. God doesn't accept stolen things for robbery. और परमेश्वर चोरी की चीजों को कभी भी ग्रहण नहीं करता. He was a pastor with a good conscience. वो एक ऐसे पादरी थे जो अच्छे विवेक वाले थे. He wanted to return that money to the driver. और वो वर्तमान इस ड्राइवर को पैसा लौटाना चाहते हैं. You know what the driver said? पता है उस ड्राइवर ने क्या कहा? So then I heard that there was a pastor in our village now, new pastor in our village. और उसने कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि हमारे गांव में एक नया पादरी जी आने वाले हैं. I wanted to attend his meetings. मैं उसकी सभा में शामिल होना चाहता हूँ. So then I thought, let me give him 25 cents more. We'll see what he will do, whether he will return the money. और इसके लिए मैंने मन ही मन सोचा कि मैं उसको 25 सेंट ज्यादा दूंगा और उस पादरी को क्या करता है मैं उसको परख के देखूंगा. But anyway, he accepted the 25 cents. क्या उसने उस 25 सेंट को ग्रहण किया? As he alighted from the bus, और जैसे वो बस से नीचे उतरा, this pastor lost his balance. उसने अपना संतुलन खो दिया. This pastor, ये पास्टर जी ने संतुलन खो दिया. he took hold of a lamp post. और वो एक बिजली के खंभे को पकड़ लेता है. He said, Lord, I almost sold
the Son of God for a quarter, for 25 cents. और वो इस प्रकार वहां पर बोलने लगा कि इस 25 सेंट के लिए मैं परमेश्वर के पुत्र को खोने वाला था। Had he taken the money back, he would have lost that precious soul. अगर मैं ये पैसा लेकर के वहां से जाता, एक बहुमूल्य आत्मा को मैं खो बैठता। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। So many souls are getting lost by such things. इस प्रकार की कामों या बातों के कारण कितने आत्माएं नष्ट हो रहा है। Right, that which is right in the sight of God. जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है वही सही है। Say for example, abortion. और उदाहरण के रूप में गर्भपात कराना। Indian government accepts it. Indian government accepts it. भारतीय जो संविधान जो है वो इसको ग्रहण करता है। Indian government has accepted that. और भारत सरकार ने ये उस कानून ने इसको ग्रहण किया है। Society may accept it. समाज इसको ग्रहण करता है। Wife's life is in danger, and that is why we have to save the wife, we'll have to terminate the child. और पत्नी का जो जान खतरे में है और पत्नी की जान को बचाने के लिए इस बच्चे को मारना ही होगा। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। Medical science also, they also accept that. और मेडिकल साइंस भी इस बात को ग्रहण करती है। But does the word of God accept it? तो क्या परमेश्वर का वचन मानता है? To save one life, can you destroy another life? एक जान को बचाने के लिए क्या दूसरा जीवन को मारना है? What does the word of God say? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Government may accept it. सामान्य लोग इससे ग्रहण कर सकते हैं। Government may accept it. सरकार इसको ग्रहण कर सकते हैं। Family may accept it. शायद परिवार भी मान ले। But you must understand one thing. लेकिन एक बात आप जान लो। From the time of conception, you must understand the child has got body, soul and spirit. जिस समय में गर्भ धारण हुआ उस समय में उस बच्चे को शरीर, आत्मा, प्राण मिला है। Have you done it? It is a big crime in the sight of God. अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो ईश्वर की दृष्टि में एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। I didn't understand about the seriousness of it till recently. और हाल ही में हुआ इसकी गंभीरता को मैं नहीं समझ पाता। When I was serving the Lord in a particular place. एक खास जगह में जब मैं सेवा कर रहा था। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। I was speaking about this before a communion service. और उस एक प्रभुभोज की सेवा से पहले इसी संबंध में मैं जब संदेश दे रहा हूँ। If there is anyone who has gone for abortion, husbands and both husband and wife, kindly don't take part in the Lord's table. और मैंने इस प्रकार कहा कि अगर कोई भी यहाँ पर पति पत्नी है जो गर्भपात कराए हैं, कृपा करके इस मेज में शामिल ना हो। Then afterwards you approach a senior servant of God, they'll tell you what to do about it. अगर परमेश्वर इसके विषय में गंभीर होगा तो क्या करोगे? They will tell you what you should do. और परमेश्वर आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। So then afterwards I received a phone call. और उसके बाद मुझे फोन कॉल मुझे मिला। I don't know who that sister is. मैं नहीं जानता कि वो बहन कौन है। I don't know her before or afterwards. पहले भी बाद में भी मैं उसको नहीं जानता हूँ। Then afterwards she was telling me about her problem. और वो उसके बाद अपनी समस्या मुझे बताई। We had the first child. हमको पहला बच्चा हुआ था। Then afterwards within 7 months I again conceived. और After 7 months I again conceived. और 7वें महीने के बाद दोबारा मेरा गर्भ धारण हुआ। We could not manage that. और हम उस बच्चे को नहीं चाहते थे क्योंकि हम उसकी परवरिश नहीं कर सकते हैं। We had to go for abortion. और इसके लिए हमको गर्भपात कराना पड़ा। So then I saw a vision, she said. लेकिन उसने कहा कि मैंने एक दर्शन को देखा। So then I was carrying a boy baby, beautiful boy baby. और मैं देखता हूँ कि एक बहुत ही सुंदर एक बालक को मैं अपनी गोदी में पकड़ी हुई हूँ। That boy was pointing his finger at me. और वो बच्चा, वो बालक जो है वो मेरी ओर उंगली दिखाते हुए कह रहा है। She was mentioning in Hindi, what did you do to me? और हिंदी में वो बच्चे इस प्रकार बोला, तूने मेरे साथ क्या किया? What did you do to me? तूने मेरे साथ क्या किया? From that time onwards I lost all my peace. और उस समय से मैं मेरे शांति को खो बैठी। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। You must understand the child has got body, soul and spirit from the time of conception. जिस समय में एक माँ गर्भ धारण करती है उसी समय से वो उस बच्चे को शरीर, आत्मा, प्राण मिल जाता है। It is murder in the sight of God. World may accept, God will not accept. और ये परमेश्वर की दृष्टि में एक हत्या है। संसार भले ही उसको ग्रहण करे लेकिन परमेश्वर उसे ग्रहण ना करेगा। Find out what is right in the sight of God. परमेश्वर की दृष्टि में क्या सही है, इस बात की खोज करो। What is one definition of the word righteousness? एक धार्मिकता का एक अर्थ क्या है? I may say everything is okay. He has beaten me, I have beaten him back. हम सब कुछ सही है करके बोलेंगे, उसने मुझे मारा तो मैंने उसको भी मार दिया। You know, some places what happened? कुछ जगहों में क्या हुआ? When they come for the convention, जब सम्मेलन में लोग आए, in some place where there is rainy season,
So they bring umbrellas. और बरसात का समय था, छाता को लाए थे. So people come there, when they don't see their chappals, they take someone else's chappal and go. और जब वो लोग सभा में देखते हैं कि उसका चप्पल वहां पर नहीं दिखाई दे रहा, तो किसी का भी चप्पल लेके चले गए. I lost my chappal, so therefore how can I go? How can I walk? I took someone else's chappal. मैंने मेरा चप्पल खो दिया, मैं नंगे पांव कैसे जाऊं, तो मैंने भी किसी का चप्पल उठा लिया. In the place where I was serving, so then they took away the umbrella. I took someone else's umbrella. और जहां पर मैं सेवा कर रहा था, वहां पर मैंने छाता को खो दिया, तो मैंने और किसी का छाता ले लिया. Two negative things cannot make one thing right. दो नकारात्मक बातें एक बात को सही नहीं कर सकता. Find out what is right in the sight of God. इसी के लिए इस बात को समझ लो, ईश्वर की दृष्टि में सही क्या है. Second, what is righteousness? दूसरा, धार्मिकता बोलने से क्या है. When we turn to the book of Isaiah chapter 43 verse 25. जब हम लोग यशायाह की किताब 43वें अध्याय और उसके 25वें वचन को पढ़ते हैं. मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपता देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा. I, even I, am he that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. I will not only blot your sins, I will forget them also. मैं ना केवल तेरे पाप को मिटा देता हूँ, मैं उसको स्मरण भी नहीं करता. What is the second definition of the word righteousness? धार्मिकता का दूसरा परिभाषा क्या है. Forgiving and forgetting. क्षमा करना और उसे भूल भी जाना. I have forgiven, but I cannot forget. मैंने माफ तो किया, लेकिन भूल नहीं पाता. If the Lord, how does the Lord deal with you and me? अगर ऐसा होगा तो परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ कैसे व्यवहार करेगा. How does He deal with us? वो हमारे साथ कैसे व्यवहार करता है. He not only forgives, He forgets them also. ना केवल हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करता है, साथ ही साथ वो उसे स्मरण भी नहीं करता, भूल जाता है. The truth of justification, it is a vast subject. और धर्मी ठहराए जाना, ये जो विषय है, एक बहुत ही बड़ा विषय है. It is beyond man's comprehension. और मनुष्य के समझ के परे है ये. Say for example, उदाहरण के तौर में, you would have heard about a person called Lenin. लेनिन के विषय में आपने सुना होगा. He had killed so many millions of his own people उसने during Russian Revolution. और रूस में हुए आंदोलन के समय में इस व्यक्ति ने अपने ही कई लोगों को मरवा दिया. He had killed many millions. कई सैकड़ों में उसने मार दिया. Then afterwards, he accepted Christ as his personal savior. उसके बाद इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण किया. His daughter became a missionary in a European country. और वो यूरोपियन देश में his daughter became a missionary in the European country. उसकी बेटी जो है वो एक यूरोपियन कंट्री में जाकर के एक मिशनरी हो गई. In the end, he accepted Jesus as his personal savior. और अंत में उसने भी अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया. But in eternity, what will happen? लेकिन नित्यता में क्या होगा. When they go before the judgment seat of Christ, what will happen? जब मसीह के न्याय आसन के सामने वो जाएगा तो क्या होगा. The person whom he killed will say, this person only killed us. ये व्यक्ति जिसने मुझे हत्या किया है, यही वो व्यक्ति करके वो बोलेगा. He is the person who ordered our execution. इसी व्यक्ति ने हमें मरवाने की आज्ञा दिया है करके कहेगा. But at the same time, what will God say? उस समय परमेश्वर क्या बोलेगा. No, he has not done that at all. नहीं, परमेश्वर कहेगा उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है. God doesn't say, he has confessed and I have forgiven him. परमेश्वर ये नहीं कहेगा कि उसने स्वीकार किया और मैंने उसको क्षमा किया. He says, the meaning of the word justification is as if we have never committed that sin. परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करने का अर्थ ये है कि परमेश्वर ऐसा बोलेगा मानो उसने कभी ये गलती किया ही ना हो. From the beginning, he has never committed any sin. आरंभ से ही इस व्यक्ति ने ऐसा कोई गुनाह, कोई पाप नहीं किया है. Does the world accept this? क्या ये जगत ऐसी बात को ग्रहण करेगा. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. So this is what the word of God speaks about. यही परमेश्वर का वचन कहता है. Your sin will I remember no more. तेरे पाप को मैं दोबारा स्मरण ही ना करूंगा. I am not only forgiven, I have forgotten all them. ना केवल मैंने उसको क्षमा किया, मैंने उस सारे पापों को मैं भूल भी गया हूँ. But on the other side, you should understand one more thing. लेकिन दूसरी तरफ और एक बात आप समझ लेना चाहिए.
You who have accepted the righteousness of God, आपने जो परमेश्वर की धार्मिकता को परिधान किया है, praise be to God, परमेश्वर की स्तुति हो। you should be able to forgive and forget also. आपको भी चाहिए कि आप दूसरों के गुनाह को क्षमा करें और उसको भूल भी जाएं। Say for example, Brother Bijoy had a girlfriend when he was in college. और मान लो कि भाई विजय को कॉलेज में पढ़ने के दिनों में गर्लफ्रेंड हुआ करता था। I don't know whether he had or not, probably not. मुझको नहीं मालूम कि सच में ऐसा है क्या नहीं। So if the Lord says, hey, you had that girlfriend and I've forgiven you, you must understand. और अगर मैं उसको ये कहता हूँ कि तेरा इस प्रकार एक गर्लफ्रेंड था और क्या तू सोचता है कि मैंने तुझे क्षमा कर दिया है? God doesn't say that. परमेश्वर ऐसा नहीं कहता। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। Oh, he has confessed, he has done, he has come out of it. Now he doesn't have anything at all. He is righteous. I have made him righteous. और उसने स्वीकार कर दिया इन सारी बातों से, वो उभर के बाहर आ गया, मैंने उसको क्षमा कर दिया, अभी वो मेरी दृष्टि में धर्मी है, उसने ऐसा कोई भी गलती नहीं किया है। Today God wants to fill us with that righteousness. परमेश्वर आज आपको इसी प्रकार की धार्मिकता से भरना चाहता है। You are justified by faith. आप विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए। You are justified by the word of God. परमेश्वर के वचन से धर्मी ठहराए You are गए। justified by the blood of Jesus. यीशु के लहू से धर्मी ठहराए गए। One blood was given to mankind. मनुष्य जाति के लिए एक लहू दिया गया। Whether you are in the West, whether you are an African or an Indian, आप एक पश्चिमी देश में रहने वाले या अफ्रीका में या भारतीय क्यों ना हो, Christ gave his life, he shed his blood for the sake of mankind that you may be justified. मनुष्य जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून दे दिया ताकि सारे मनुष्य उसके द्वारा धर्मी ठहराए जाए। There was a dark period in the life of Martin Luther. मार्टिन लूथर के जीवन में एक अंधकार में समय काल था। So therefore he thought, what is happening to me? Everyone is against me. वो इस प्रकार सोचने लगा, क्या हो रहा है मेरे साथ, हर कोई मेरे विरोध में है। Along with that, devil also started to play tricks. उसी समय में शैतान भी चालाकी उसके साथ करने लगा। He showed all the sins that he had committed from his young age. अपने जवानी से जो जो गलती पापों को उसने किया, वो सब शैतान मार्टिन लूथर को दिखाने लगा। But at the same time, you know what happened? पता है उसी समय में क्या हुआ? For a few moments he was in a confusion. कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए उसके अंदर बहुत ही गड़बड़ी, एक द्वंद्वता आ गया। Devil is a liar and father of lies, you must understand. आप इस बात को भली भांति जान ले कि शैतान झूठा है, झूठों का पिता है। The things that he has forgiven, he will say he has not forgiven. और जो चीज परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, शैतान ऐसा कहेगा मानो आपको क्षमा नहीं मिला। All that you have to do is confess all your sins and be in Christ. He is our righteousness. आपको केवल इतना ही करना है कि अपने सारे पापों को उसके सामने जाकर के स्वीकार करना है और मसीह में रहना है, क्योंकि वही हमारी धार्मिकता है। Then he saw in that vision. उस समय में मार्टिन ने एक दर्शन देखा। When he saw those sins, he thought, yes, I have committed all these things. उसने देखा कि हाँ, ये सारे पाप जो है वो मैंने किया था। Later, the blood of Jesus came and cleansed them all. लेकिन बाद में वो सब जो पाप था एक एक करके यीशु का लहू आता है और उसे मिटाते ही जाता है। You have committed that sin. You have committed this sin. तूने ये पाप किया, तूने वो पाप किया। Then afterwards he became bold enough. लेकिन उस दर्शन के बाद उसके अंदर हियाब एक साहस आया। Okay, show me some more of my sins. और उसने फिर शैतान को कहा, और भी कुछ मेरे पाप दिखा दे। Again he rolled back. और उसके बाद वो वो सारी बातों को वो पीछे गया और पीछे जाने लगा। Hundreds of things which he had done against God and against the word of God. परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में जो जो किया था, इसे 100 बातें दिखाया। They were all blotted by the precious blood of Jesus. किंतु वो सारे गुनाह, सारे पाप यीशु के पवित्र लहू के द्वारा वो धो दिया गया, मिटा दिया गया। All those who are washed by the precious blood of Jesus, you should confess it day after day. और जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू से द्वारा धोए गए हैं, प्रतिदिन आप उसको स्वीकार करना चाहिए। So then God has not only forgiven all my sins, he has forgotten them all. प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को केवल क्षमा नहीं किया है, उसने संपूर्ण रीति से मिटा दिया है। लहू से आजादी है, लहू से आजादी है, लहू से लहू से आजादी है, लहू से आजादी है, लहू से लहू से लहू से आजादी
हालेलुया। Confess, when you are in a confusion, confess the blood of Jesus. जब भी कोई प्रकार की द्वंद्वता आपके जीवन में दिखाई दे, उस समय में प्रभु यीशु मसीह के लहू को आप स्वीकार करो। The blood which was shed more than 2000 years back. 2000 साल पहले जो लहू यीशु तूने मेरे लिए बहाया है, It will not go in vain, you must understand. हम इस बात को जानने की वो व्यर्थ ना हुआ। It has power to cleanse your sin even now. आज भी आपके पाप को क्षमा करने के लिए वो शक्ति सामर्थ्य है। What is the third definition of the word righteousness? धार्मिकता का तीसरा परिभाषा क्या है? When we turn to the book of Ephesians chapter 6 verse 14. यफिसी की पत्री 6 अध्याय 14 वचन जब आप पढ़ते हो, सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, Stand therefore having your loins girt about with truth and having on the breastplate of righteousness. Here righteousness is compared to a breastplate. यहाँ पर धार्मिकता को एक झिलम के साथ तुलना किया गया है, It is a defensive weapon. और ये एक सुरक्षा देने वाला एक हथियार है। So righteousness is compared to a breastplate. यहाँ पर धार्मिकता को झिलम के साथ तुलना किया गया है। But in 1 Thessalonians chapter 5 verse 8, पहला थिस्सलुनी 5वें अध्याय के 8 वचन में 2 things are mentioned वहाँ there. पर 2 बातें उल्लेख है। Read that verse please. पर हम जो दीन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet the hope of salvation. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। Here breastplate is compared to faith and love. यहाँ पर झिलम को विश्वास और प्रेम के साथ दर्शाया गया है। Simple logic. एक बहुत ही सिंपल एक तत्व ज्ञान है। A is equal to B. A के बराबर B है, B is equal to C plus D. और C के बराबर B के बराबर C और D है, So A is equal to C plus D. और A जो है वर्तमान C और D के बराबर हुआ। So what is righteousness? धार्मिकता क्या है? Faith and love joining together make righteousness. विश्वास और प्रेम मिलने से धार्मिकता होता है। It is not enough if you say I've got faith in God alone. मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ, ये कहने से काफी नहीं है। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। And you should also have faith, you should have love towards one and all. और हम सबके साथ प्रेम भी रखना आवश्यक है। When we turn to the book of Ephesians chapter 1 verse 15, जब हम एफिसी की पत्री पहले अध्याय के 15 वचन को पढ़ते हैं, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints. praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Faith and love joined together make righteousness. प्रेम और विश्वास जब आपस में जुड़ जाता है, धार्मिकता को सृष्टि करता है। I have faith in God. I am not bothered about others. मैं प्रभु को विश्वास करता हूँ, लेकिन दूसरों की चिंता या परवाह नहीं करता। As one of our senior pastors preached once, एक बार हमारे बहुत ही वरिष्ठ पास्टर जी ने इस प्रकार प्रचार एक बार किए, there are some Christians who hop on one leg. और कुछ क्रिश्चियन है या कुछ मसीह है जो एक ही पाँव में कूद के जाते हैं। How long will they walk? कितने लंबे दूरी तक जा सकते हैं? Okay, after finishing your dinner, you try to hop till the gate. We'll see whether it will be possible for you. और आज इस रात्रि भोजन के बाद आप एक पांव से गेट तक चल के जाने की कोशिश करो, कितना दूर जा सकते हो देखिएगा। A true child of God will always walk with both legs. एक सच्चा मसीह का बच्चा जो है दोनों पांव से ठीक रीति से चलेगा। Same thing is mentioned in Colossians 1:4 also. और यही बात कोलोसी की पत्री पहले अध्याय के 4 वचन में भी लिखा है। Faith towards God and love towards all saints. और परमेश्वर के प्रति विश्वास और सारे संतों के प्रति प्रेम का भाव। Some have a wrong understanding about saints. कई लोग संतों के विषय में गलत समझ रखे हैं। Some think it is only servants of God clad in white. कुछ लोग सोचते हैं ये संत बोलने से सफेद पोशाक पहने हुए केवल सेवक लोग ही हैं। Who is a saint? ये संत बोलने से कौन? A person whose sins are forgiven is a saint. जो व्यक्ति के पाप क्षमा हुए वो व्यक्ति संत है। A person whose blood is whose sins are cleansed by the precious blood of Jesus. एक व्यक्ति जिसका पाप यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से धो दिया गया, वो व्यक्ति संत है। A person who is washed by the word of God.
और एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन से शुद्ध किया गया वो व्यक्ति संत है। A person who is sanctified by the word of God, by the Holy Spirit. एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा की द्वारा शुद्ध किया गया। All those who are sanctified by the word of God, by the Holy Spirit, shout hallelujah. जितने भी लोग परमेश्वर के वचन और आत्मा से शुद्ध किए गए हैं उन लोग एक जोरदार हालेलुया बोले। You are a saint, you must understand. आप इस बात को समझ ले, आप संत हो। You have confessed all your sins, you are a saint in the आपने sight अपने of. सारे पापों को स्वीकार किया, आप संत हो। So love towards God and faith towards all saints. परमेश्वर के प्रति विश्वास और सारे संतों के प्रति प्रेम भाव। So do you have peace at home? क्या आपके घर में एक दूसरे से मेल मिलाप है? Or do you love the brethren? क्या आप अपने भाइयों को प्रेम करते हो? You go and sit for worship. जब आप आराधना में बैठते हो, worship. So then you see a person who is not to your liking. और आप वहां पर देखते हो कि एक व्यक्ति जिसको आप पसंद नहीं करते, So they slowly shift and move backward or forward. आप धीरे से खसकते आगे नहीं तो पीछे जाके बैठ जाते I हैं। cannot sit with that मैं person. इसके साथ बैठ नहीं सकता। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। How can you go there? How can you receive the righteousness of God? अगर ऐसा है तो परमेश्वर की धार्मिकता को आपको कैसे मिलेगा? आप कैसे वहां जाओगे? Pastor Don gave a beautiful explanation. और इसके विषय में पास्टर जॉन जी ने एक बहुत ही सुंदर व्याख्यान He दिया। was speaking to a soul about the different places in eternity. और एक व्यक्ति से नित्यता में अलग अलग स्थानों के बारे में वो बातें कर रहा था। Then afterwards he said, and he came to know that this brother did not like another person, could not look in his face. और उसने इस बात को जाना कि ये जिससे वो बातें कर रहा है ये एक दूसरे व्यक्ति को पसंद नहीं करता, उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता है। You know what he said? तो पता है उसने क्या कहा? If you are like this, how will you go and sit with that brother to heaven? और उस पास्टर जी ने से कहा कि अगर आप ऐसे ही रहोगे तो स्वर्ग में आप कैसे उसके साथ जाकर के बैठने पाओगे? That soul, he shot back. Pastor, you yourself told me that there are different places in heaven. Let him go to one place, I'll go to another place. तब उस व्यक्ति ने पास्टर जी को इस प्रकार कहा कि पास्टर जी अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बताया था स्वर्ग में अलग अलग स्थान है, तो मैं एक स्थान जाऊंगा, उसको दूसरे स्थान जाने दे। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। New earth and new heaven, it's not for you. नया पृथ्वी नया आकाश आपके लिए नहीं है, It's already preserved. It is already prepared for those. और ये उनके लिए पहले से ही वहां पर रखा दिया गया है, उनके लिए तैयार किया गया था। I go to prepare a place for you, he said. किंतु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारी स्थान तैयार करने को जा रहा हूँ, It is that place that we should crave for. और उसी स्थान के लिए हमें कोशिश करना है। All those who would like to become the bride of Christ, shout hallelujah. जितने भी लोग मसीह के दुल्हन बनना चाहते हैं जोरदार हालेलुया बोले। So then love one another. It's not enough if you say, I've got faith in Jesus Christ. मुझे मसीह के ऊपर विश्वास है केवल बोलने से काफी नहीं है, एक दूसरे से भी प्रेम रखो। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। Be filled with the love of God. आप परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण रहे। And then you have perfect faith in God. परमेश्वर के ऊपर एक सिद्ध विश्वास रखें। You heard the testimony of that beloved brother. प्रिय भाई के आज साक्षी को आपने सुना। Faith in God. What is the meaning of faith in God? मसीह में या परमेश्वर में विश्वास रखने का अर्थ क्या है? It's not only putting our faith for our salvation. केवल उद्धार के Trusting निमित्त, God for our salvation. केवल उद्धार के निमित्त या उद्धार पाने के निमित्त रखने वाला विश्वास नहीं, But at the same time, you trust God for the healing also. आपके चंगाई के लिए भी आप उसके ऊपर भरोसा रखना है। How many of you are borrowing money here and there? कि आप में से कितने लोग इधर उधर उधार मांगते हो? Then what will you do? आप क्या करोगे? Do you have faith in God? क्या आपके अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास है? You wait in the presence of God. God will meet all your needs. आप परमेश्वर के सम्मुख में बाट जो हो आपकी सारी जरूरतें परमेश्वर देगा। God is working even today also. He is able to meet all your needs. परमेश्वर आज भी क्रियाशील है और वो आपकी सारी जरूरतों को दे सकता है। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। Don't go to borrow here and there. इधर उधर मांगने को ना जाएं। One more thing is, और एक बात, believers, you'll have to help some poor believers. We are not against that. एक विश्वासी गरीब विश्वासी को मदद करना चाहिए, इसके विरुद्ध हम नहीं है। Whatever God asks, you just give it
without expecting him to return. जो भी कुछ परमेश्वर आपसे कहता है वापस मिलेगा ये सोच के नहीं, आप ऐसे ही दे देना चाहिए। On the other hand, if you keep giving money, you will be destroying that person's faith. लेकिन उसी समय में आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बारंबार 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 उस व्यक्ति को देते देते उसके विश्वास को आप नष्ट कर रहे हो। You should see that that person puts his trust in God. आप इस बात को परख के देखना चाहिए कि क्या वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। How many of us are standing for the truth of divine healing? कितने लोग ईश्वरीय चंगाई की सच्चाई में खड़े हैं। What the medical science could not do, God was able to do in his life. देखो जो मेडिकल साइंस कर नहीं पाया उस भाई के जीवन में परमेश्वर ने कर दिखाया। We are not speaking theory, we are speaking something practical. हम लोग केवल एक पढ़ने लिखने वाली बातों को नहीं, एक प्रयोग में अभ्यास में लाने वाली बातों को बोल रहे हैं। As a 9-year-old child, I was sick. एक 9 साल के आयु में मैं भी बीमार था। I was admitted to the hospital. अस्पताल में मुझे भर्ती किया गया। It was during March. Because of my hospitalization, I could not write my 4th standard exam. और वो मार्च का महीना था, इस कारण से 4th कक्षा का मैं एग्जाम या परीक्षा दे नहीं पाया। So then, I remember us having taken 49 injections. और मेरे को याद है कि उस समय में तकरीबन 49 इंजेक्शन मुझे दिया गया। The medicine which they would administer, it was stinking. और वो जो दवाइयां जो मुझे दिया करता था उसमें से बदबू आता था। Even now also when I go to hospitals to visit, sometimes that old feeling comes back. आज भी जब कभी भी किसी रोगी से मिलने के लिए जब मैं अस्पताल जाता हूँ वो पुरानी बातें मुझे याद आते हुए वो मुझे परेशान करता है। So then afterwards I still had fever after 2.5 months. And my parents brought me out of the hospital. और उसके बाद भी तकरीबन 2.5 महीने के लिए मेरे अंदर बुखार बना रहा और मेरे माता पिता ने मुझे अस्पताल से बाहर निकाल दिए। Saints of this assembly prayed for me and perfectly healed. और इस कलीसिया के संत लोग ने जब मेरे लिए प्रार्थना किया संपूर्ण चंगाई मुझे मिला। Doctor said you will have that sickness, you will have this sickness. डॉक्टर कहते हैं कि आपके अंदर ये वो बीमारियां हैं। What doctors could not do, Jesus has done in my life. जो वैद्य लोग नहीं कर सकते यीशु ने मेरे जीवन में किया है। More than 60 years have passed by. 60 साल से अधिक समय बीत गया। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। After coming for the ministry, I had to do hard work. और सेवा में आने के बाद मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ता था। But God kept me hale and healthy. मुझे स्वस्थ उत्तम स्वास्थ्य में प्रभु ने रखा। I had to drive long distance 600 kilometers and so alone. मुझे अकेले ही तकरीबन 600 किलोमीटर तक गाड़ी चलाना पड़ता था। Now there are good cars and good roads. Those days single road, old cars. इन दिनों में अच्छे गाड़ियां हैं, अच्छा रास्ता है, लेकिन उन दिनों में केवल एक ही रास्ता हुआ करता था और बहुत ही गंदा रास्ता हुआ करता था। And रास्ता not only Rasta, even cars also were old. और वहां पर जो गाड़ियां हमारे पास था वो भी बहुत पुरानी गाड़ियां। Every time you go to the work, go to a long ride, come back, I should go to the workshop. और हर बार एक दूरी यात्रा करने के बाद वापस आने से गाड़ी को लेकर के मुझे उसको वर्कशॉप में ले जाना पड़ता था। You know what doctor said? पता है डॉक्टर ने क्या कहा? He has got some deficiency in his blood. If it continues, he will have tuberculosis. और उस डॉक्टर ने कहा कि इनके खून में कुछ कमियां हैं, अगर ऐसे ही रहेगा तो आगे जाकर के टीबी हो सकता है। There is some problem with his digestive system, and if it continues, he will not be able to digest fatty substance. और इस प्रकार कहा कि उसके पाचन शक्ति में कुछ खराबियां हैं, अगर ऐसे रहेगा तो वो आगे जाकर के अच्छे चर्बी वाले चीजों को वो हजम नहीं कर सकेगा। When I was asked to go to Dubai, जब मेरे को दुबई जाने के लिए कहा गया, so then I had to give my blood for my residence visa. और मेरे रेसिडेंस वीसा के निमित्त मुझे मेरा खून की परीक्षा करने के लिए देना था। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। I had a small doubt. Doctor said there is some deficiency in my blood. So then will it continue? Will I still have that sickness? I thought. और उस समय में जब मैं खून दे रहा था तो मेरे मन में इस प्रकार के एक विचार था, सोच था। डॉक्टर जी ने इस प्रकार कहा कि मेरे खून में कुछ समस्या है, तो क्या ये अभी भी ऐसा ही है? 2003 perfect, 2006 perfect. I had to again go back for renewal of my visa in 2006 perfect. 2003 में गया, कोई भी बीमारी नहीं, संपूर्ण रीति से निकल गया। 2006 में दोबारा वीसा को नया करने के लिए जाने के समय में परीक्षण किया, कोई बीमारी नहीं, संपूर्ण चंगाई।
doctor's diagnosis may be right, हो सकता है कि डॉक्टर का परीक्षण सही हो, but at the same time you must understand one thing: He took our sicknesses on the cross. किंतु उसी समय में इस बात को भी आप भली भांति जान ले, कलवरी क्रूस में उसने हमारी बीमारी को उठा लिया है। Don't put your trust only. The Lord has not only asked us to believe Him for our salvation, but for all things. लेकिन पर इस बात को भली भांति जान ले, केवल उद्धार के लिए उसके ऊपर विश्वास करो, केवल इतना ही नहीं, सारी बातों के लिए उसके ऊपर भरोसा रखो, ये भी परमेश्वर हमें चाहता है। Today, if you have faith in God, go back to your homes, throw all your medicines from your cabinet. आज अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो तो घर वापस लौटने के समय में आपके कैबिनेट में या आपके घर में रखा हुआ जितनी भी दवाइयां हैं निकाल के फेंक दो। Don't be worried, you will not die before time. Word of God says, our days are numbered, our months are in His book. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मृत्यु के विषय में चिंता ना करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारे आयु के दिन को उसने गिनती किया हुआ है, उस समय को उसने ठहराया है। Even today, even tonight, the power of resurrection is working in our midst. आज की रात में भी परमेश्वर की पुनरुत्थान की शक्ति हमारे मध्य में काम कर रहा है। You be more worried about the kingdom of God than your sickness. आपकी बीमारी से बढ़ चढ़ के आप परमेश्वर के राज्य के बारे में चिंता करो। Jesus is alive. He has created your body. He knows what is wrong with you. और यीशु मसीह जीवित है, जिसने आपके शरीर को बनाया है, उसके साथ क्या करना है, कैसे करना है, वो जानता है। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। Secondly, दूसरा, the kingdom of God is not meat and drink. परमेश्वर का राज्य केवल खाना पीना नहीं, It is righteousness and peace, it is mentioned. और लिखा है कि धार्मिकता और मेल मिलाप है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति Have हो। you got peace with God? क्या आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप बनाए हुए हो? When we turn to the book of Job, chapter 22, verse 21. जब हम लोग अय्यूब की किताब के 22वें अध्याय के 21वें वचन को पढ़ते हैं, If you do anything against the word of God, you must understand that you have not acquainted with God. अगर आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कुछ भी करते हो तो आप इस बात को समझ ले कि परमेश्वर के साथ आपका नाता नहीं, Because word of God is the authority. क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक अधिकार है। Authority, that is, it tells us what to do, what not to do. और क्या करना है क्या नहीं करना है, ये अधिकार वचन में है। Word of God is the authority. परमेश्वर के वचन में अधिकार है। Read in Job chapter 22, verse 21. पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 22वें अध्याय का 21वां वचन। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। Acquaint now thyself with Him and be at peace. Thereby good shall come unto thee. You acquaint yourself with God. आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। Is there anything between you and God? क्या ऐसा कोई भी चीज है जो आपके और आपके परमेश्वर के बीच आ रहा हो? Small lie is sufficient. एक छोटा सा झूठ ही काफी है। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। So then, how is our life in the presence of God? परमेश्वर के सम्मुख में आपका जीवन कैसा है? Are we cheating others? क्या आप दूसरों को धोखा देते हो? Are we fighting with others? क्या दूसरों से लड़ते झगड़ते हो? Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। Are we deceiving others? क्या दूसरे को धोखा देते हो? Children, are you copying in schools? क्या बच्चे लोग आप दूसरों की नकल निकालते हो, नकल उतारते हो? All these things are not right in the sense. It takes you away from the presence of God. ये सारी बातें परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं, और ये सारी बातें आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाएगा। What is the biggest problem of a Pentecostalist? और पेंटिकॉस्ट के लोगों का सबसे बड़ी समस्या क्या है? Is not at all bothered about kingdom of God and righteousness. परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता के बारे में चिंता ही नहीं करते। Making more money. He doesn't know that it is carrying him away from the presence of God. Making more money. ज्यादा पैसा इतना बनाते रहते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में जाने के बारे में उनको ध्यान ही नहीं है। No, it takes him away from the presence of God. और वो जो पैसा बनाने की चिंता करते, वो उनको परमेश्वर के सम्मुख से दूर ले जाता है। As I often mention, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, Indian government has got only 5-year plan. भारत की सरकार को केवल 5 साल का ही योजना रहता है। But at the same time, Pentecostalists have got 5 generation plan. किंतु पेंटिकॉस्ट के लोगों के अंदर 5
पीढ़ियों का योजना रहता है। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। What will happen if my son is a fool? अगर मेरा बच्चा मूर्ख निकले तो क्या होगा? I'll have to save something for him. उसके लिए मुझे कुछ बचत करना है। No, you need not do that. आपको करने की जरूरत नहीं। Yeah, so you'll have to give them something. It's true. आपको उसे कुछ देना है, ये सही है। We don't say that when you leave this world, you should have a zero bank balance and हम go. ये नहीं कहते कि जब आप इस संसार को छोड़ जाओ तो बैंक बैलेंस शून्य करके जाओ। There was a believer also in a particular place. एक खास जगह में एक विश्वासी थे। But I don't say that you'll have to go to that extent. लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप उस हद तक करना। He said, I will not leave a single paise for my children. और वो इस प्रकार कहा करते हैं कि मैं मेरे बच्चों को एक पैसा भी नहीं दूंगा। They have to come to the presence of God, fall at His feet and then cry, and they should receive money from God. मेरे बच्चे को चाहिए कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आए और रोए और परमेश्वर से मांग करके ले ले। He was a very rich person. और वो बहुत ही धनी व्यक्ति है। I was a young boy. I took part in his funeral service in Bangalore. और बैंगलोर में जब मैं रहा करता था, छोटा बच्चा था, उसके मरण में मैं उस फ्यूनरल में अटेंड किया हूँ। What a wonderful testimony. बहुत ही सुंदर गवाही। Yes, your children need some money. It is true. ये सत्य है कि आपके बच्चों को कुछ पैसे चाहिए। We are preaching that we are in the last days. और हम लोग इस बात को प्रचार करते कि हम लोग अंतिम दिनों में हैं। People are just carry on with this world as if they have got the whole time before them. और लोग इन दिनों में इस रीति से दुनिया में चल फिर रहे हैं कि मानो उनके सामने बहुत लंबा समय बाकी है। Tomorrow will take care of itself. You must understand. कल का चिंता कल खुद कर लेगा, आप जान लीजिए। So therefore, you be at peace with God. इसी के लिए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में बनाए रखिए। Whatever you do, is it pleasing God? जो भी कुछ आप करते हो, क्या वो उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है? What do we read in the book of Ephesians chapter 2 verse 15? एफिस की किताब 2 अध्याय के 15 वचन में क्या पढ़ते हैं? Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। In 2 Corinthians chapter 5 verse 20 it is mentioned. 2 कोरिन्थी 5 के 20 में ऐसा लिखा है। That is the ministry of a servant of God. और ये एक परमेश्वर के सेवकों का केवल सेवकाई नहीं, It is the mission of a servant of God. परमेश्वर के सेवकों का एक सेवकाई है। Be reconciled with God. और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। It is not, I'll pray that God may bless you abundantly in the worldly way. और ये केवल नहीं कि मैं प्रार्थना करूं कि संसार रीति से परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। I'll pray that God will give you a Porsche car. मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको एक अच्छा कार दे। I'll pray that God will give you a mansion. और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको एक अच्छा मकान दे। That is not the ministry of a servant of God. परमेश्वर के सेवकों का ये सेवकाई नहीं है। Yes, you need certain things, but at the same time, when you seek kingdom of God and His righteousness, all other things will add it. ये सारी बातें हमें चाहिए, ये तो सही है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करोगे तो ये सारी बातें हमें उसके साथ मिलेगा। So what is the mission of a servant of God? परमेश्वर के सेवकों का एक सेवकाई या मिशन क्या है? As we read in 2 Corinthians chapter 5 verse 20. 2 कोरिन्थी अध्याय 5 के 20 वचन में जैसे हम पढ़ते हैं, Be reconciled with God. हम परमेश्वर के साथ मेल कराएं। Our heart must never depart from God. हमारा हृदय परमेश्वर से कभी भी दूर नहीं जाना। At the time of Reverend Moody's death, और रेवरेंड मूडी के मृत्यु के समय में what a wonderful testimony he gives. बहुत ही सुंदर गवाही उसको मिला। So then he said, the heaven is opening and the earth is receding. और देखो स्वर्ग खुला हुआ है और ये पृथ्वी उसे दे रहा है। There is not even a cloud between me and my God. मेरे परमेश्वर के बीच में एक बादल भी आड़े नहीं आ रहा। He told his wife, वो अपने पत्नी को उसने कहा, don't call me back. मुझे दोबारा वापस ना बुलाना। If they say this is death, how sweet it is. अगर लोग कहते हैं कि ये मृत्यु है तो ये कितना ही सुंदर है। With that confession you will have to live in your day-to-day life. दैनिक जीवन में इसी प्रकार के स्वीकार के साथ हमें जीना है। So you should have peace with God. परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप रखते हुए, There's not even a cloud between me and my God. मेरे परमेश्वर के आड़े एक बादल भी नहीं। Second, दूसरा, in 1 Thessalonians chapter 5 verse 13. और 1 थिस्सलुनीकी 5 के 13 में, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ
उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। And to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Be at peace among yourself. अपने अंदर मेल मिलाप से रहो। So are you at peace with your brethren? क्या आपके भाइयों के साथ मेल मिलाप है? Are you at peace with your leaders? और आपके चलाने वालों के साथ क्या आप शांति या मेल मिलाप में हो? Are you at peace with your boss in office? आपके ऑफिस में काम करने वाले आपके बॉस के साथ क्या आप मेल मिलाप में हो? Because we are supposed to live in peace with all men. क्योंकि हम वो लोग हैं जो सबके साथ मेल मिलाप रखने के लिए बुलाए गए हैं। What do we read in the book of Hebrews chapter 12 verse 14? इब्रानी की किताब 12 अध्याय के 14 वचन हम क्या पढ़ते हैं? सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. There is a great connection between peace and holiness. मेल मिलाप और पवित्रता के बीच में एक बहुत ही गहरा संबंध है। They are directly proportional to one another. और ये एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हैं। No, directly proportional. When one increases, the other one increases और also. ये इस रीति से जुड़े हैं कि जब एक बढ़ता है तो दूसरा भी इसके साथ ही साथ बढ़ता है। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। So then, you should have peace with all men, it is mentioned. लिखा हुआ है कि सारे मनुष्य के साथ मेल मिलाप बनाए रखो। So that in book of Romans it is mentioned, as far as possible be at peace with all men. और रोमी की पत्र में लिखा है जितना हो सके सबके साथ मेल मिलाप बनाए रखो। Go and get reconciled with all. This convention will be a great blessing for you. सबके साथ आप मेल मिलाप करो, ये सम्मेलन आपके लिए एक बहुत बड़ी आशीष होकर बदल जाएगा। This is what that, so you should have peace with one and all. इस रीति से आपको एक दूसरे से मेल मिलाप करना है। You should be able to look at the face of each and every one. एक दूसरे के चेहरे को हम देख लेना है। In a particular Pentecostal assembly, I happened to hear this story. मैं इस कहानी को सुना हूं, एक विशेष पेंटिकॉस्टल कलीसिया में ऐसा हुआ। After the Lord's table, और मेज की सेवा के बाद that pastor's wife did not have, there is a good conscience with some people it seems. और जो पास्टर जी के जो पत्नी थे उनको किसी के साथ मेल मिलाप नहीं था। Believers were telling us this story. और विश्वासी लोग ये बात बोल रहे थे। So that she would go and kiss only some people and then not few others. और इसकी पत्नी जो है उस मेज की सेवा के बाद कुछ लोगों को केवल पवित्र चुम्बन देती है, सबको नहीं। I don't want that person. I cannot. मैं उसके साथ मैं जा सकती, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। Then what is the use of that Lord's table? अगर ऐसा है तो इस मेज की सेवा का लाभ क्या हुआ? Follow peace with all men. हर एक मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। Holiness without which no man shall see the Lord. पवित्रता के बिना कोई भी ईश्वर को देख नहीं सकता। These are the last days. Don't waste your time. ये आखिरी दिन है, हम समय व्यर्थ न करें। Carry on with your job. Let children carry on with their business and studies. और नौकरी में चलते रहना, बच्चे लोग पढ़ाई या व्यापार करते रहना। But in the midst of all, you should have peace among yourself. लेकिन इन सारी बातों के मध्य, इन सारी बातों के बीच एक दूसरे में या आपके अंदर मेल मिलाप होना। Third, in 2 Thessalonians chapter 3 verse 14, दूसरा थिस्सलुनी 3 अध्याय के 14 वचन में there's something called peace with God, peace with man, and third, peace within yourself. और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, मनुष्य के साथ मेल मिलाप, अपने अंदर भी तुम शांति बनाए रखना है। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो जिससे वह लज्जित हो। And if any man obey not our No, word, 2 Thessalonians, be having peace with yourself. Which verse? There's a verse in Thessalonians. I don't know whether it is 5:14. Be at peace within yourselves. Even in your heart there should be perfect peace. आपके हृदय में भी एक संपूर्ण शांति दिखाई देना चाहिए। There's a beautiful song in English. अंग्रेजी में एक बहुत ही सुंदर गीत है। Peace, perfect peace, Zion is my goal. और शांति, संपूर्ण शांति सियोनी मेरा लक्ष्य है। Peace with God, peace with man, peace within ourselves. परमेश्वर के साथ मेल मिलाप और शांति, मनुष्य के साथ मेल मिलाप और शांति, और मेरे अंदर भी शांति। Time is up. और समय हो गया है। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। I'll mention one more thing and finish. एक और बात बोल के मैं समाप्त करता हूँ।
Third thing is joy of the Holy Spirit. और तीसरा है पवित्र आत्मा में आनंद। Kingdom of God is not meat and drink. परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, It is righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. और ये धार्मिकता, मिलाप और पवित्र आत्मा में वो आनंद है। When you are filled with the Holy Spirit, have you got joy within yourself? जब आप पवित्र आत्मा में भरते हो तो क्या आपके अंदर एक आनंद को महसूस करते हो? Some people speak in tongues mechanically. कुछ लोग एक यंत्र के समान अन्य भाषा बोलते रहते हैं। So then they have got the same unknown tongue which they had from the beginning. जो शुरुआती समय में जो अन्य भाषा था वही अभी भी चलता रहता है। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। There should be a renewal of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का एक नवीनीकरण होना चाहिए। That is the joy, that is the kingdom of God. और यही एक वो आनंद है, यही परमेश्वर का राज्य है। What do we read in the book of Acts chapter 15 verse 26? और प्रेरितों के काम के 13:52. 13 अध्याय के 52 में क्या पढ़ते हैं? प्रेरित 13:52। और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। And the disciples were filled with joy and with the Holy Ghost. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। There is Holy Spirit, it is true, but is it, have you got full? कि एक पवित्र आत्मा आपके अंदर है ये तो सही है, किंतु क्या उसकी परिपूर्णता को अनुभव करते हो? What does the psalmist say? भजन वाला क्या कहता है? My cup runneth over. मेरा कटोरा उमड़ रहा है। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। Many things which the psalmist has mentioned, he has not spoken about himself. और बहुत सारी बातें भजन वाले ने कहा लेकिन खुद के बारे में नहीं। So then he has spoken about the crucifixion of Jesus. यीशु के क्रूस के बारे में विवरण दिया गया। He has spoken about himself. उसने अपने बारे में भी बताया। Some of them are his own experience. उसने कुछ अपने अनुभव को भी भजनों ने लिखा है। But there are certain things which he speaks about the experience of the New Testament child of God. लेकिन उसी समय में भजन लिखने वालों में से कुछ भजन ऐसा भी है जो नए नियम के परमेश्वर के बच्चों के संबंध में इन्होंने गाए हैं। So there will be, I'll raise up a group of people. मैं एक झुंड के लोगों को उठाऊंगा। They will be filled with the joy of the Holy Spirit. वे लोग पवित्र आत्मा में आनंदित और मगन रहेंगे। They will be able to endure all suffering and shame for my sake. मेरे कारण उन लोग सब प्रकार के दुख और निंदा को सह लेंगे। These are the last days, you must understand. आप इस बात को भली बात भी जान लें कि हम अंतिम दिनों में हैं। A child of God was mentioning about her experience when she received the Holy Spirit. एक परमेश्वर का बच्चा पवित्र आत्मा पाने के समय में अपना अनुभव साझा कर रहा था। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। She said, when I received the Holy Spirit, waves and waves and waves of the love of God started to flow through me. और उस प्रकार बोलने लगा कि जब मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किया तो परमेश्वर के प्रेम का तरंग एक तरंग के ऊपर दूसरा तरंग इस प्रकार लगातार तरंगे तरंगे मेरे पर उतरता रहा। I heard about a person who got filled in the Spirit. मैंने एक व्यक्ति के बारे में सुना जो आत्मा में भरता है। So then after there was a half wall like this. और यहाँ पर दीवार को देखो तो आधा दीवार खड़ा है। So when he received the Holy Spirit, जब वो आत्मा को पाता है, he was overjoyed. He didn't know what to do. He jumped over the house and started to speak in tongues. और वो अन्य भाषा में बातें करते हुए आनंद में ऐसे परिपूर्ण हुआ कि क्या करने मालूम नहीं हुआ कि उसने उस दीवार को ही फांद दिया। The Lord has filled us with the Holy Spirit. परमेश्वर ने को पवित्र आत्मा से भरा है। But it should be full. It should be overflowing. ये केवल भरा नहीं रहना है, उमड़ के बाहर निकलना है। Even if it is 100%, it is not sufficient. अगर ये 100% है तो भी काफी नहीं है। It should be 110%. It should be 120%. ये 110%, 120% होकर के उमड़ना है। Today is the last chance for you to be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में भरने के लिए आज की रात आखिरी समय है। Sometimes you would not have received the Holy Spirit. हो सकता है कि आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया हो। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। God is able to fill you tonight. आज की रात प्रभु आपको भर सकता है। God who satisfies the longing soul is in our midst. परमेश्वर प्यासों को उस तृप्त करने वाला हमारे बीच में है। Some of you do not have freedom in so many other places to open your mouth and sing and shout at the top of your voice. कई लोगों को अलग अलग जगह में अपने मुंह पसार करके गीत गा करके आराधना करने का शायद सुविधा या स्वाधीनता ना होगा। Today is the last opportunity for you. कि तो आपके लिए आज आखिरी मौका है। Let the kingdom of God come in you. परमेश्वर का राज्य आप में आने दे। Such of those who have already received the Holy Spirit, don't be satisfied with whatever you have received. जितना भी आपने पाया है, अभिषेक पाए हुए लोग, उससे आप तृप्त ना रहें। God wants
to give you something more. परमेश्वर आपको उससे भी कुछ अधिक देना चाहता है। As we heard earlier, don't limit the Holy One of Israel. और आप जैसे कि हमने पहले सुना कि इस्राएल के इस पवित्र को आप एक सीमित ना रखें। Blessed are they that hunger and thirst after righteousness. जो धार्मिकता के प्रति भूखे और प्यासे वो धन्य हैं। All those who are satisfied with whatever you have received, shout hallelujah. जितने भी लोग जितना आपको मिला है मैं से तृप्त हूँ बोलने वाले हालेलुया बोले। Then you all can go home now after the meeting. इस सभा के बाद अब सब घर लौट जाइए। You did not understand what I am trying to tell you. मैं जो बोलना चाहता हूँ आप समझ ही नहीं रहे हो। I am not satisfied with whatever anointing that I have received. मैंने जितना भी अभिषेक पाया उससे मैं तृप्त नहीं हूँ। I want more, I want more, I want more. मुझे और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए। All those who want more and more, shout hallelujah. जितनों को और भी चाहिए बोलने वाले हालेलुया बोले। God is in our midst tonight. परमेश्वर आज की रात हमारे बीच में है। Kingdom of God is not eating and drinking. परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। Whatever God has provided us, you can eat and drink. Nothing wrong with that. जो भी कुछ परमेश्वर आपके लिए बना के देता है उसको खा करके जाइएगा, उसमें कोई खराबी नहीं है। But at the same time, you should be filled with the joy of the Holy Spirit. लेकिन उसी समय में पवित्र आत्मा के आनंद में भी आप परिपूर्ण रहना चाहिए। As you leave this campus, don't leave this place till you are filled with the Holy Spirit. जब आप इस स्थान को छोड़ करके वापस जाएं, जब तक पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आप में ना आए, आप छोड़ के ना जाओ। When the fire of the Lord is with you, जब परमेश्वर की अग्नि आपके साथ होगा, you will not be afraid of sin. आप पाप से डरोगे नहीं। Sin will be afraid of you. किंतु पाप आपको देख के डरेगा। You will not be afraid of sickness. आप बीमारी से डरोगे नहीं। Today God will anoint many with the Holy Spirit. आज परमेश्वर अनेकों को पवित्र आत्मा से अभिषेक करेगा। How many of you are worried about witchcraft and that and this? कितने लोग जादू टोना के विषय में चिंतित है, इस उसके बारे में चिंतित है। But if you are filled with the power of the Holy Spirit, किंतु अगर आप पवित्र आत्मा का अभिषेक के सामर्थ्य भरोगे, the power of witchcraft will be afraid of you. You must understand. आप इस बात को समझने की जादू टोना की शक्ति आपको देख के डरेगा। Shall we all close our eyes now? आइए अभी अपनी आंखों को बंद करें। Or shall we all stand? Shall we all stand? आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं। The kingdom of God is not meat and drink. परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, Righteousness, peace and joy of the Holy Spirit. किंतु परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, मेल मिलाप और पवित्र आत्मा में आनंद है। All be filled with the Holy Spirit. सब लोग पवित्र आत्मा में भर जाएं। So then God has given you the Holy Spirit. You yourself can be delivered. और जब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा तो आप अपने आप में छुटकारा पाओगे। Where there is Spirit, there is liberty. जहाँ कहीं परमेश्वर की आत्मा है वहाँ स्वाधीनता है। Every sickness, get filled in the Spirit. Every sickness will go. अगर आप बीमार हो, आप आत्मा में भरो, आपकी बीमारी भाग खड़ा होगा। The power of witchcraft cannot remain here. जादू टोना की शक्ति यहाँ खड़ी नहीं रह सकती। The spirit of unbelief must depart from here. आपके अंदर से सारे अविश्वास तो दूर हो जाना चाहिए। All close your eyes, close your सब लोग eyes. अपनी आंखों को बंद करें। All speak in tongues, speak in tongues. अन्य अन्य भाषा में बातें करें। Sharabakatura, rabakatura. Shurugurabakatura, shurugurakatura. पवित्र तेल से मुझे भर दे, आनंद के तेल से मुझे भर दे, पवित्र तेल से मुझे भर दे, आनंद के तेल से मुझे भर दे, उत्तर के मेरे से भर दे, उत्तर के मेरे से भर दे, शत्रु के सामने खुशी मनाने, शत्रु के सामने खुशी मनाने, पवित्र तेल से मुझे भर दे, आनंद के तेल से मदद कर दे, पवित्र तेल से मुझे भर दे, आनंद के तेल से मदद कर दे, उत्तर के मेरे से भर दे, उत्तर के मेरे से भर दे, शत्रु के सामने खुशी मनाने, शत्रु के सामने खुशी मनाने, आशीष दी मेरी ये दुआ, अनुग्रह दी दोस्त तेरा, आशीष दी मेरी ये दुआ, अनुग्रह दी दोस्त तेरा, अभिषेक भक्त तेरा,
आशीष दी मेरी दुआ, अनुग्रह दे दोस्त तेरा, आशीष दे मेरी दुआ, अनुग्रह दे दोस्त तेरा, आशीष दी 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 मेरी दुआ, अनुग्रह दे दोस्त तेरा। Dear child of God, परमेश्वर की प्रिय संतान, you may be a child sometimes, आप एक बच्चे होंगे but at the same time, you don't know what you have received. और किंतु आप ये नहीं जानते कि आपने क्या पाया है। When the devil looks at you, it trembles. जब शैतान आपको देखता है तो वो थरथरा उठता है। You are filled with the power of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरे हुए हो। You may be a servant of God, you may be a believer, you may be a new soul, you may be an old one. आप एक सेवक होंगे, आप एक विश्वासी होंगे, आप नए नए आए होंगे या एक बुजुर्ग व्यक्ति होंगे। God has given you the sword of the Spirit. परमेश्वर ने आपको आत्मा की तलवार दिया है। Don't put it in the scabbard. Don't put it in the sheath. और आप उसको मयान में ना रखें। Don't put it in the sheath. Don't put it in the cover. Pull it out. आप उसको मयान में ना रखें, आप उसको बाहर निकालें। Pull it out. उसको बाहर निकालें। Use that sword of the Spirit. और उस आत्मा की तलवार का इस्तेमाल करें। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से Every demonic power must depart from here. इस स्थान से सारी शैतान की शक्ति खो जाए। All be filled with the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की शक्ति से भर जाओ। Hallelujah, 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 hallelujah. God has given a special anointing to the servants of God. परमेश्वर ने सेवकों को एक विशेष अभिषेक दिया है। They are no ordinary men or women. वो ये लोग एक साधारण पुरुष स्त्री नहीं है। They are flaming spirit. The word of God says they are flaming spirits. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वे तो एक धधकती हुई आग है। The fire will proceed from them. और वहां से उनसे एक आग निकलेगा। An anointing will come upon the servants of God. और एक अभिषेक सेवकों के ऊपर उतरते हुए Victory over sin. पाप के ऊपर फतह, Victory over fear of death. मृत्यु के ऊपर जय, Victory over any sickness. किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसके ऊपर एक जय, Victory over the gates of hell. मृत्यु और उस पाताल के फाटकों के ऊपर भी एक जय। You believe that God has given you such an anointing. देखो, आप विश्वास करो, ऐसा ही एक अभिषेक परमेश्वर ने आपको दिया है।
If thou would believe, thou should see the glory of God. अगर आप विश्वास करोगे ईश्वर की महिमा देखोगे. Now, right now. अभी, हाँ अभी ही. He is restoring the backslidden ones also. और वो पिछड़ते हुए सारी अवस्था को वो आपको लौटा दे रहा है. Some of you have become cold. The Spirit of God knows. कई लोग ठंडे पड़ गए, यह बात परमेश्वर की आत्मा जानता है. You are too precious for the Lord. किंतु आप परमेश्वर के लिए बहुत ही बहुमूल्य हो. Just repent for all your sins. अपने सारे पापों के लिए तू पश्चाताप कर. He wants you. वो आपको चाहता है. He wants you. वो आपको चाहता है. He cannot do without you. वो तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता. He has given His blood for you. उसने तेरे लिए खून बहाया है. पवित्र आत्मा शालेम की राजा शक्ति से उतर में आ जाओ. पवित्र आत्मा शालीन के राजा शक्ति से उतर के आ जाओ. सुखी हड्डियों को अकेला देने को जीवन की आकाशी भक्ति. सुखी हड्डियों को अकेला देने को जीवन की आकाशी भक्ति. आत्मा शालीन के राजा शक्ति से उतर के आ जाओ. पवित्र आत्मा शालीन के राजा शक्ति से उतर के आ जाओ. सुखी हड्डियों को अकेला देने को जीवन की आकाशी भक्ति. सुखी हड्डियों को अकेला देने को जीवन की आकाशी भक्ति. God undertook for a third day meeting for which let's praise God. परमेश्वर हमारे तीसरे दिन की संध्याकालीन सभा का बोझ उठाया, धन्यवाद करें. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. He was in our midst with all power and majesty for which let's praise वो God. अपने सारे महिमा के साथ, सामर्थ के साथ वो हमारे बीच में है, इसलिए उसका धन्यवाद करें. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. He undertook for our songs. He gave us a wonderful testimony for which let's praise God. उसने हमारे गीत की सेवा का बोझ उठाया, बहुत ही सुंदर साक्षी आज हमें सुनने के लिए दिया, इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. For all the words which were spoken tonight, let's praise God. आज परमेश्वर हमसे बातें की वे सारे वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद करें. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. He is preparing us all for New Jerusalem and Zion, for which let's praise God. वो हम सबको नया यरूशलेम और सिय्योन के लिए प्रस्तुत कर रहा है, इसके लिए उसका धन्यवाद करें. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Giving all honor and glory to God, let's praise God. सारे आदर महिमा प्रभु को देते हुए, ईश्वर को देते हुए धन्यवाद करेंगे. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. प्यारे परम पिता परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. कन्वेंशन के तीसरे दिन में प्रभु जी तो हमें लाया, और जब से ये सभा शुरू हुई है
तेरा आत्मा प्यारे सर्वशक्तिमान तेरा वचन हमारे बीच में बहुत जोर से काम करता रहा प्रभु जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस मीटिंग के हर हिस्से को तूने आशीष दिया और खासकर प्यारे सर्वशक्तिमान प्रभु जी तेरे सब लोगों की जरूरतों के अनुसार प्यारे प्रभु जी तेरे वचन को तूने भेज दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताकि तेरे सब लोग प्यारे सर्वशक्तिमान सियोन के लिए प्रभु जी नए यरूशलेम के लिए योग्य ठहरे प्रभु जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उन्हें उस धार्मिकता की जरूरत है प्यारे प्रभु जी जो प्यारे सर्वशक्तिमान अपनी समझ के अनुसार नहीं प्रभु जी, ऐसी धार्मिकता प्यारे सर्वशक्तिमान जो तेरे सामने स्वीकार योग्य हो। तरह तरह के पापों को तूने प्रभु जी प्रकट किया है प्यारे सर्वशक्तिमान। कई लोग अज्ञानता से, कई लोग जानबूझकर प्रभु जी तरह तरह के पापों में लगे रहते हैं प्रभु, और इस तरह से प्यारे सर्वशक्तिमान से धार्मिकता से वो वंचित रह जाते हैं प्रभु जी। हम विनती करते हैं हालेलुया प्रभु जी एक एक की समझ खुल जाए प्रभु जी, और एक एक के हृदय में विश्वास के साथ ये सारी बातें बैठ जाए प्रभु जी, ताकि ऐसा एक निर्दोष जीवन प्रभु जी अपने प्रतिदिन के जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सारी बातों में प्रभु जी गुजार सके प्रभु जी। हालेलुया, ताकि मसीह की जो धार्मिकता है प्यारे सर्वशक्तिमान हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उससे सब प्रभु जी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भरपूर हो जाए प्यारे सर्वशक्तिमान, और उसमें बढ़ते चले जाएं और शुद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु पिता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सब में प्यारे सर्वशक्तिमान जो मेल मिलाप की जरूरत है प्रभु जी, तेरा राज्य खाना पीना नहीं है प्यारे सर्वशक्तिमान, वो धार्मिकता है प्रभु जी, और वो मेल मिलाप है प्यारे सर्वशक्तिमान, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है प्रभु। तरह तरह से प्यारे सर्वशक्तिमान कई लोग जो प्रभु जी मेल मिलाप से रहित है प्रभु, सबों की सहायता करो प्रभु जी। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, ताकि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मेल मिलाप के द्वारा प्रभु जी वो पवित्रता को भी प्राप्त करें, आत्मिक जीवन में आगे बढ़े प्रभु जी तुम सहायता कर। और प्यारे सर्वशक्तिमान प्रभु जी सब लोग आनंद से भरे रहे प्रभु। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी आनंद मिलता है प्यारे सर्वशक्तिमान हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, और प्यारे प्रभु जी तेरी मर्जी को करते हुए, खुशी से प्रभु जी सारी बातों को करते हुए, उपासना आराधना करते हुए प्यारे सर्वशक्तिमान आगे बढ़े, और मसीह के दिन के लिए, महिमा के दिन के लिए योग्य ठहरे प्रभु जी। जिस उद्देश्य के साथ ये वचन आए हैं, विनती है प्यारे प्रभु जब तक तेरा उद्देश्य पूरा ना हो हालेलुया हर एक के मन में, दिल में ये वचन बने रहे और काम करते रहें, और हर एक को बड़ा छुटकारा मिल जाए प्यारे प्रभु जी, हर एक शुद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए, तेरे राज्य के लिए योग्य बन जाए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे दास के लिए भी और भी ज्यादा इस्तेमाल करो, यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with each and every one of us until Jesus appears in all his glory. Amen. Hallelujah. God bless you all. Servants of God, be